Let me start with next topic from hematology, and the topic is platelets. Till now we had discussed about blood anatomy and physiology, RBCs, WBCs, platelet physiology and anatomy. After that we had discussed about the total functioning of component of plasma protein in blood. Now, yesterday we had discussed about the total deficiency of or disorder of RBCs related issues. First one is anemia and polycythemia, and there were various kind of problems which come under polycythemia and anemia. We already had discussed. Now let us start with platelet. Now we start with platelet. As we all know that platelet is an essential component of our blood. Platelet is an essential component of our blood which help in the blood coagulation. Coagulation means control of bleeding or cessation of bleeding, which help in the various disease. For example, in case if any trauma or injury took place on any roadside, or any skin bruise take place, then these platelet comes on skin surface or surface of blood vessels, which help in the formation of white clot. So such kind of cells remembered as platelet, which help in blood coagulation or cessation of bleeding from injury. Now, what is the structure of platelet? How many numbers are present in per mm cube? What is the shape, and what are the various structures which are being present inside the structure of platelet? We will discuss about it. Now, first of all, what is platelet? What is platelet? Definition. Platelet is there are two types of platelet. One is inactive platelet and second one is active platelet. If we discuss about or talk about inactive platelet, then we can say that the inactive platelet is singular shape or single angle shape, in which there is no sticky material will be present and wrinkles will be present. For example, it is a blood cell which help in control of bleeding, or help to control bleeding. Now, platelet are the smallest cell in female, and second smallest cell in male. Because as we all know that in male, sperm is the smallest cell, because the body surface area of sperm is less than body surface area of platelet. Now, what is the ratio of platelet with RBCs? If we talk about platelet or RBCs, the ratio will be 20:1. Or if ratio of RBCs and platelet is asked, अगर RBC और प्लेटलेट का अगर रेशियो पूछ लिया जाता है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर 20 RBCs हैं तो एक क्या होगी? प्लेटलेट होगी. ऊपर ये थोड़ा चेंज करना, 1:20, और RBC और प्लेटलेट में क्या होगा? 20:1 होगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर कितने होते हैं प्लेटलेट के, हमेशा याद रखना, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होंगे, चिल्ड्रन कितने से लेकर के 3 साल से लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें प्लेटलेट काउंट होता है 1 to 3 lakhs per mm cube.
क्यूब। अगर आप लोग न्यूबॉर्न की बात करते हो, न्यूबॉर्न मतलब 0 डेज टू 28 डेज, 0 डेज टू 28 डेज, तब वहाँ पर कितना होता है 1.5 to 3.5 लैक्स पर mm³ अगर हम अडल्ट पर्सन की बात करते हैं, इन केस ऑफ अडल्ट पर्सन द नंबर विल बी 1.5 lakh to 4 lakhs पर mm³, पर mm³। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है प्लेटलेट का। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर क्या है? Structure of platelet. There are two types of platelet. First one is inactive platelet. Inactive platelet, और क्या होता है उसके बाद यही इनएक्टिव प्लेटलेट किस में चेंज हो जाती है? एक्टिव प्लेटलेट में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एक्टिव प्लेटलेट में क्या हो जाती है? चेंज हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब क्या होता है, जो प्लेटलेट है, जो इनएक्टिव प्लेटलेट होगी वो सिंगल सेल होगी। कैसी होगी? सिंगल शेप होगी, या एक ही एंगल होगा उसका, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर? रिंकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें और इसके अंदर क्या क्या होता है, पहली चीज याद रखना, पहली तो कैसी होगी? ये सिंगल एंगल होगी। कैसी होगी? एंगल क्या होगा? बिल्कुल सिंगल होगा। दूसरा, रिंकल्ड होगी, ये रिंकल्ड होंगी, और इसके अंदर कोई भी स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। अब क्या था कि जो प्लेटलेट होती हैं उस स्टिकी मटेरियल की हेल्प से क्या करेंगी? चिपक जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। प्लेटलेट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि रिंकल्ड हो गया, नो स्टिकी मटेरियल, इसके अंदर और क्या होता है? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रेजेंट होगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से क्या होगा? जो प्लेटलेट है वो क्या कर सकती है? एनर्जी को रिसीव कर सकती है, ठीक है। एनर्जी को क्या कर सकती है? वो रिसीव कर सकती है। अब अगर हम इस प्लेटलेट के कुछ कंपोनेंट के और को देखें, तो इस प्लेटलेट के अंदर और क्या मिलता है? पहला मिलता है थ्रोम्बोक्सिनेज, थ्रोम्बोक्सिनेज A2, थ्रोम्बोक्सिनेज A2। ये क्या करता है? ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बिन को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, ये इस सेल को क्या करेगा? अटैच करवाना स्टार्ट कर देगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? एक्टिव सेल्स में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। और अटैच क्या होंगी? ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर ये सेल्स क्या हो जाती हैं? अटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? स्टिकी मटेरियल। ये कैसा मटेरियल होता है? स्टिकी। ये किस तरह से काम करता है कि स्टिकी मटेरियल है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक तो हुआ थ्रोम्बोक्सिनेज A2, दूसरा क्या होता है? सीरोटोनिन, तीसरा होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट होता है इसके अंदर कैल्शियम। नेक्स्ट क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्या आता है? FSF, फिब्रिन
स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। अब ये फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होता है जो, ये कितने नंबर का होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13। कितने नंबर होता है इसमें? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13। ठीक है, स्टेबिलाइजिंग फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर कितना होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13। एक्टिव प्लेटलेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम एक्टिव प्लेटलेट की अगर हम बात करते हैं, अब एक्टिव प्लेटलेट जो होगी ये क्या करती है? ये मल्टीपल एंगुलर होती है। कैसी होती है? ये मल्टीपल एंगल बनाएगी। ठीक है, क्या करती है? ये मल्टीपल एंगल बनाती है ये। ठीक है, क्या करेगी? मल्टीपल एंगल बनाएगी। अब इसके चारों तरफ क्या मिलता है? एक स्टिकी मटेरियल आप लोगों को दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? स्टिकी मटेरियल आप लोगों को दिखाई दे सकता है। एक स्टिकी मटेरियल क्या कर सकता है? आप लोगों को दिखाई दे सकता है। अब अगर देखो, अगर यहाँ पर कोई दूसरी प्लेटलेट आती है तो वो क्या हो सकती है? यहाँ पर चिपक सकती है। क्या हो सकती है? यहाँ पर इसके बीच में आकर के चिपक सकती है। और दूसरी एक प्लेटलेट क्या आ सकती है? यहाँ पर ऐसे दिखाई दे सकती है। अगर फिर भी और एग्जांपल की ले लो, अगर यहाँ पर कोई प्लेटलेट आप लोगों को क्या कर सकती है? दिखाई दे सकती है। ठीक है, और वो यहाँ पर आकर के क्या कर सकती है? चिपक सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? वो यहाँ पर आकर चिपक सकती है। लेकिन यहाँ पर आकर के कोई प्लेटलेट यहाँ पर नहीं चिपक सकती। अब ये प्लेटलेट यहाँ पर अगर ऐसे चिपक सकती हैं तो ऐसे ही क्या होगा? और इनके ऊपर आकर क्या हो जाएंगी? चिपक सकती हैं। तो ये क्या कर सकती हैं? ये सिंगल नहीं मिलती। ये कैसी मिलती है? मल्टीपल एंगल। कैसे एंगल होते हैं ये? मल्टीपल एंगल। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसके बाद? मल्टीपल एंगल हुआ, ये क्या करेंगे? स्टिकी मटेरियल होता है इसके पास। क्या होता है? स्टिकी मटेरियल। अब मैंने बोला था कि सेल के अंदर क्या है? ये रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वाली प्लेटलेट के अंदर क्या होता है? रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिंकल प्रेजेंट नहीं है। नो रिंकल्स आर प्रेजेंट। लेकिन इनमें क्या है? एक इक्वेलिटी क्या है, या एक जो समानता जो हम बोल सकते हैं क्या होती है, कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस तो क्या होगा? एब्सेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग क्या करते हो? आप लोग देखते हो। ये क्या हुआ? हमारी जो प्लेटलेट थी वो क्या है? ये इसका ओवरव्यू है इसकी स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेमिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर। जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं कितने होते हैं? टोटल 13 इन नंबर। टोटल 13 इन नंबर। एक और फैक्टर आता है 12A क्लॉटिंग फैक्टर। 12A क्लॉटिंग फैक्टर, उसको क्या बोला जाता है? सॉरी, 12A क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, 14th क्लॉटिंग फैक्टर। 14th क्लॉटिंग फैक्टर आता है, वो कौन सा होता है? प्रोटीन सी। कौन सा होता है? प्रोटीन सी। या फिर 12A क्लॉटिंग फैक्टर जो है एक वो भी आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं? कि 12A क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ब्लड को क्या कर सकता है? क्लॉट करने में हेल्प कर सकता है। कब करता है ब्लड को क्लॉट करने में? ये आर्टिफिशियल होता है, ये नेचुरल नहीं होता। ये कैसा होता है? आर्टिफिशियल बोलो या फिर सिंथेटिक बोलो। सिंथेटिक क्लॉटिंग
फैक्टर, ये नेचुरल नहीं होता, ठीक है, ये कैसा होता है, सिंथेटिक क्लोटिंग फैक्टर होता है ये। तो ये चीज याद रखना, जब एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जब हम चेक करते हैं उसको, तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें सिलिकॉन को मिलाया जाता है और उसका जो टाइमिंग है 20 से 35 सेकंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं पीटीटी में। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास होते हैं। सबसे पहले आएगा फिब्रिनोजन। फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा आएगा, फिब्रिनोजन। दूसरा कौन सा आएगा, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट आएगा कैल्शियम। नेक्स्ट आता है लेबाइल फैक्टर, आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा, लेबाइल फैक्टर, और भी दिख जाएगा लेबाइल फैक्टर। नेक्स्ट वन जो आता है एब्सेंट फैक्टर, एब्सेंट, सिक्स्थ कोई भी क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन ये जो सिक्स्थ क्लोटिंग फैक्टर था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके साथ जैसे मिलते थे, फिफ्थ के जैसे मिलते थे, और अब इसको क्या कर दिया गया, फिफ्थ में ही इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए सिक्स्थ क्लोटिंग फैक्टर क्या है, एब्सेंट माना जाता है। नेक्स्ट आता है सेवेंथ क्लोटिंग फैक्टर, वो कौन सा होता है, स्टेबल फैक्टर। कौन सा होगा, स्टेबल फैक्टर। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, एट्थ क्लोटिंग फैक्टर होगा हमारे पास एंटी हीमोफिलिक ए। नेक्स्ट आता है नाइन्थ। नेक्स्ट कौन सा आता है, नाइन्थ कौन सा आता है, क्रिसमस। कौन सा आता है, क्रिसमस आता है, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, एंटी हीमोफिलिक बी। नेक्स्ट आता है स्टुअर्ट प्रोवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी हीमोफिलिक सी। नेक्स्ट वन आता है हैगमैन फैक्टर। और जो सबसे लास्ट वाला आता है वो होता है, पहले मैं बता चुका हूं, जो कहां पर मिलता है, प्लेटलेट के, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट के अंदर मिलता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, FSF, ठीक है। ये तीन आप लोगों को 13 क्या होते हैं दिखाई देते हैं। पहला अब हम बात करते हैं, फिर एक ट्रिक मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता देता हूँ, थोड़ी फनी ट्रिक भी है और आजकल आप उसको इजीली भी याद कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी होती है, फिर रुक जाओ, फिर प्यार तुम्हें कर लेंगे। अब यहीं से लिख लेते हैं, सक, SAC, अब सक
सब पर, इससे क्या होगा, स्टुअर्ट प्रोवर, शक सब पर अब होगा फिर, ठीक है। फिर प्यार तुम्हें कर लेंगे अब, शक सब पर अब होगा फिर, ये आप लोग याद रखना। फिर से फिब्रिनोजन, प्यार से प्रोथ्रोम्बिन, तुम्हें थ्रोम्बोप्लास्टिन, कर कैल्शियम, लेंगे लेबाइल फैक्टर, अब से एब्सेंट, शक से एस से क्या होगा, स्टेबल फैक्टर, ए से एंटी हीमोफिलिक ए, सी से एंटी हीमोफिलिक बी या फिर क्रिसमस फैक्टर। नेक्स्ट आता है सब पर स्टुअर्ट प्रोवर, अब से फिर क्या आएगा, एंटी हीमोफिलिक सी आएगा, और होगा से मतलब हैगमैन फैक्टर, और लास्ट में कौन सा होगा सबसे, फिर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इनको सभी क्लोटिंग फैक्टर जितने भी हैं आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, आपके लिए थोड़ा इजी भी रहेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कौन सा होता है, थर्ड, सेवंथ, 12th और 13। 7, 12th, थर्ड, 7, 12th और 13 जो हम कोएगुलेशन के प्रोसेस में पढ़ते हैं। लेकिन ऑल ओवर जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद फिब्रिनोजन एक्टिवेट होता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम और विटामिन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। ये तो हुए हमारे क्लोटिंग फैक्टर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि उसके बाद हमारी जो प्लेटलेट है उसके फंक्शन क्या है, जो हमारी प्लेटलेट है उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब देखना कि होगा क्या, देखो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। सबसे पहला क्या है, देखो ये क्या करती है, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कि परमानेंटली स्टॉप नहीं करती ब्लीडिंग को, ये क्या करती है, टेम्परेरी स्टॉप करती है ब्लीडिंग को। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा बी, इट फॉर्म्स वाइट क्लॉट, इट फॉर्म्स वाइट क्लॉट। होगा क्या, जब प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, चिपक जाती हैं, तब वहां पर क्या बनता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनता है। क्या बनता है वहां पर, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन वहां पर बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनेगा तो वहां पर स्टिकी मटेरियल आ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में स्टिकी मटेरियल आया, उस स्टिकी मटेरियल की वजह से क्या लगता है आप लोगों को कि क्लॉट कैसा बना है, व्हाइट कलर का क्लॉट बना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इट स्टोर क्लोटिंग फैक्टर 13। क्या होता है इसके पास, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर स्टोर करती है, 13। कौन सा होता है 13 क्लोटिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये कौन सा होता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें अब कि जो नेक्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, सॉरी नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अब, कि क्या हम प्लेटलेट के बारे में और फर्दर डिस्कस कर सकते हैं इसके रोल को। अब मैंने आप लोगों को बोला कि स्टॉप क्या करती है, टेम्परेरी ब्लीडिंग को स्टॉप करती है ये, उसके बाद क्या होता है कि वाइट क्लॉट को क्या करती है, ये फॉर्म करती है। तो अब ये होता कैसे है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं डिटेल से अब पढ़ेंगे। एक प्रोसेस होती है हीमोस्टासिस,
क्या होता है, एक प्रोसेस होती है हीमोस्टासिस। एक प्रोसेस होती है हीमोस्टासिस। अब देखना डियर स्टूडेंट्स कि हीमोस्टासिस क्या है, ये होता क्या है हीमोस्टासिस, हमेशा याद रखना। अगर मान लो किसी ब्लड वेसल में इंजरी हुई, किसी ब्लड वेसल में क्या हो गया, कोई इंजरी हुई, कोई भी क्या हो गया यहाँ पर इंजरी हुई, या फिर ऊपर हमारे क्या थे, कोई भी जो सेल टिश्यू थे, ठीक है, वो क्या थे, मान लो कि ये हमारे क्या थे, सेल्स वगैरह या कोई टिश्यू हमारे क्या थे इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट थे, हमारे स्किन के सरफेस पे थे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, कोई डैमेज हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, कोई डैमेज हो गया, तो सीधी सी बात है, अब यहाँ से क्या लीक आउट होता है, ब्लड लीक आउट होगा। क्या होता है, ब्लड लीक आउट होगा, ब्लड लीक आउट। दूसरा हम लोग बात करते हैं, क्या होगा, यहाँ दोनों तरफ से क्या होगा, ब्लड लीक आउट हो सकता है दोनों तरफ से। अब होगा क्या कि हीमोस्टासिस क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, it is the series of events which takes place inside damaged tissue, which takes place inside damaged tissue or damaged blood vessel, डैमेज ब्लड वेसल। अब देखो ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स कि होता क्या है। अब एक प्रोसेस तो ये होगी कि वहां पर ब्लड क्या हो रहा था, लीक आउट हो रहा था। जो हमारे पास जो सेल होती हैं, सेल में से डैमेज होने के बाद क्या बाहर निकल के आता है, कोलेजन लीक्स आउट होता है, वहां से क्या निकलता है बाहर, कोलेजन बाहर आएगा। लेकिन अगर हम डैमेज्ड ब्लड वेसल की बात करते हैं, डैमेज्ड ब्लड वेसल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो डैमेज्ड ब्लड वेसल है उसमें से क्या निकल के आता है, VWF, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर होता क्या है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है यहाँ पर, इधर ध्यान से देखना कि वॉन विल्ब्रांड फैक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या थे, कोई भी सेल या टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ क्या थी, कोई ब्लड सप्लाई प्रेजेंट थी। और अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई डैमेज हो गया, इसके मेन पे क्या हुआ, हेड की तरफ या एक सरफेस एक एंड की तरफ, इस पे क्या हुआ, इंजरी हुई। यहाँ पर क्या था, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही थी, क्या हो रही थी, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही थी, ठीक है। जैसी ब्लड सप्लाई होती है तो यहाँ पर अब क्या है, इसके अंदर वॉन विल्ब्रांड फैक्टर था, क्या प्रेजेंट था इसके अंदर, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर प्रेजेंट था। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर कोलेजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था इनके अंदर, कोलेजन प्रेजेंट था। तो क्या होगा अगर यहाँ पर कोई डैमेज आ जाए, क्या हुआ अगर यहाँ पर कोई डैमेज आ जाए, तो यहाँ से तो क्या होगा, ये जो कोलेजन है बाहर निकलाएगा और यहाँ से विल्ब्रांड फैक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ये विल्ब्रांड फैक्टर क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो गया, अब ये दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये स्टिकी मटेरियल का काम करते हैं, क्या करते हैं, स्टिकी मटेरियल का काम करते हैं और प्लेटलेट एग्रीवेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, प्लेटलेट एग्रीवेशन, प्लेटलेट एग्रीवेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, देखो कितने पार्ट हो गए। एक तो पहला पार्ट हुआ कि ब्लड लीक आउट हुआ, ठीक है, ब्लड लीक आउट होता है तो उसके बाद होता है वेजोस्पाज्म। क्या होता है, वेजोस्पाज्म, याद रखना। जो हमारे जो ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाती हैं, ज़्यादातर स्पाज्मोटिक हो जाती हैं, ज़्यादातर क्या होगी, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी,
मतलब ब्लड को स्टॉप करना, क्या हो जाएगा उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में भी हो सकती है या फिर टिश्यू में भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा पहला स्टेप क्या हुआ हमारा कि वेजोस्पाज्म हुआ, क्या हुआ स्टेप 1 वेजोस्पाज्म हुआ। स्टेप 2 क्या हुआ कि प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए एक जगह पर, इन्होंने क्या कर दिया एक लेयर बना दी, व्हाइट क्लोट का इन्होंने क्या कर दिया एक फॉर्मेशन कर दिया। और एक चीज और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि एक और स्टेप आता है स्टेप 3, इनको हम पूरा और डिटेल में ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है, रिलैक्स रहो। स्टेप 3 में हम लोग बात करते हैं कि स्टेप 3 में क्या होगा, पहले हुआ वेजोस्पाज्म, अब प्लेटलेट भी वहां पर आ चुकी हैं, तब क्या होगा क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है रेड क्लोट का, किसका फॉर्मेशन होता है रेड क्लोट का, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिन। और फिर ये सबसे लास्ट में किस में चेंज हो जाता है डी डाइमर में, ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, कौन किस में चेंज हो जाता है डी डाइमर में चेंज हो जाता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इनसाइड क्या है डैमेज टिश्यू या फिर डैमेज ब्लड वेसल in effort to control permanent in effort to make permanent bleeding control to इसकी डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं, to permanently stop the bleeding, to permanently stop the bleeding and makes clot ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हुई हमारी हेमोस्टासिस की डेफिनेशन हुई। इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स which takes place inside any damaged blood vessel, any damaged tissue in efforts to permanently control the bleeding और स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या होगा, और उसके बाद क्या होता है मेक्स क्लॉट, ठीक है, और क्या करते हैं क्लॉट को बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, ये तो होगा हमारा हीमोस्टासिस। अब हीमोस्टासिस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग हीमोस्टासिस की बात करते हैं तो उस हीमोस्टासिस के बाद प्रोसेस कितने आते हैं हीमोस्टासिस में, तो अब उसमें प्रोसेस कितने आएंगे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। पहला है वेजोस्पाज्म, प्लेटलेट एग्रीगेशन, और थर्ड वन क्या होता है डी डाइमर का फॉर्मेशन होता, या फिर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, या फिर क्या होना रेड क्लॉट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या अब हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा स्टेप्स ऑफ हीमोस्टासिस या प्रोग्रेस ऑफ हीमोस्टासिस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हीमोस्टासिस, एक होता है होम्योस्टासिस। क्या होता है होम्योस्टासिस, हीमो का मतलब क्या है ब्लड, स्टासिस का मतलब उसको रोकना, और होम्योस्टासिस का मतलब क्या होता है जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है। होम्यो का मतलब एक टाइप से घर जो होता है। अब हमारे अंदर का जो सिस्टम है सारा, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या होना नॉर्मल मैकेनिज्म होना, मतलब उनका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना नॉर्मल होना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोस्टासिस कि हीमोस्टासिस में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अलग अलग तरह से क्या करते हैं ब्लड कंट्रोल करने में, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। पहला जो आता है वो आएगा, देखो अब ध्यान से देखना, जो पहला प्रोसेस आता है वो कौन सा आएगा वेजोस्पाज्म। क्या आएगा वेजोस्पाज्म। दूसरा आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। और लास्ट वन आता है सबसे लास्ट में क्लॉट, परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन।
परमानेंट ब्लीडिंग कंट्रोल लिख सकते हो आप लोग, परमानेंट ब्लीडिंग क्लॉट। ठीक है, वेजोस्पाज्म आता है या वेजो कंस्ट्रिक्शन भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। वेजो कंस्ट्रिक्शन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि इसको बोला जाता है प्राइमरी हीमोस्टासिस। क्या बोला जाएगा इसको, प्राइमरी हीमोस्टासिस, प्राइमरी हीमोस्टासिस इसको बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, परमानेंट जब ब्लीडिंग क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसको बोला जाता है सेकेंडरी हीमोस्टासिस, सेकेंडरी हीमोस्टासिस। लेकिन आजकल क्या होता है कि सेकेंडरी कई बार इसको ही बोल दिया जाता है और इसको टर्सरी बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है, सेकेंडरी हीमोस्टासिस सबसे लास्ट जहाँ पर परमानेंटली ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी वो क्या होता है, सेकेंडरी हीमोस्टासिस। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं डिटेल में, आप पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखना, दिख रहा होगा सबको, ये कहां तक दिखता है नीचे से, इतना। ठीक है, यहीं तक लिखेंगे हम। देखो, प्राइमरी हीमोस्टासिस होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर सुपरफिशियल टिश्यूज डैमेज हो गए, अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हुई, देखो ध्यान से, अगर कोई ब्लड वेसल्स या कोई ब्लड वेसल डैमेज हुई है, ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को पता है कि क्या डैमेज होगा, जो सुपरफिशियल जो है टिश्यू, क्या है, जो सुपरफिशियल जो टिश्यू है वो क्या होगा, डैमेज होगा। वो क्या होगा, सुपरफिशियल टिश्यू डैमेज होगा। अब सुपरफिशियल टिश्यू डैमेज हुआ तो उसकी वजह से हमारे जो नोकिसेप्टर हैं, जो क्या है, नोकिसेप्टर हैं, नोकिसेप्टर का मतलब पेन रिसेप्टर, क्या होता है इसका मतलब, पेन रिसेप्टर। ध्यान से देखना, आप जो नोकिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, मसल्स में मिल सकते हैं, ठीक है, स्किन में स्किन सरफेस पे मिल सकते हैं, और कहाँ पे मिल सकते हैं आप लोगों के, ये जॉइंट्स के बीच में मिल सकते हैं। दूसरा, किडनी में भी आप लोगों को क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये मसल, स्किन, जॉइंट, किडनी, और हाँ कहाँ पर मिल सकते हैं ये ब्रेन में, कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में भी आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ये करेंगे क्या, अब नोकिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाएगा नोकिसेप्टर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नोकिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये कौन सा सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, अब उसके बाद में होता क्या है, ये क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को शो करना स्टार्ट कर देगा, और सबसे पहले क्या करेगा, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करेगा, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेसल्स क्या हो जाएंगी, वेसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, वेसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। जैसी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल, ब्लीडिंग विल बी कंट्रोल, ब्लीडिंग कंट्रोल ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे पुश करो या प्रेस करते हो, या उसको क्या करते हो आप, जब कहीं पर रब करोगे तो फिर से क्या हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ब्लीडिंग विल बी
कंट्रोल, क्या हो जाएगी ब्लीडिंग वहां पर कंट्रोल हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन की। किसकी बात करेंगे? प्लेटलेट एग्रीगेशन की हम लोग बात करते हैं। देखो प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेटलेट में जो एग्रीगेशन होगा यहां पर क्या बनता है, व्हाइट क्लॉट फॉर्मेशन बनती है। क्या होती है? व्हाइट क्लॉट फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई देगी। अब देखो होगा क्या है इस कंडीशन में, व्हाइट क्लॉट फॉर्मेशन में कि कैसे बनेगा ये। देखना सबसे पहले क्या आएगा, इनएक्टिवेटेड, क्या आएगी? इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट आएगी। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट अब आएगी। ये खुद इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट कैसे स्टिमुलेट होती है, ध्यान से देखना। जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ध्यान से सुनना आप, जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ था तो उसके बाद अब इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी। क्या होगी? स्टिमुलेटेड। एक मिनट रुको डियर स्टूडेंट्स, इंक डाल लेते हैं इसमें, है ना। अब देखना ध्यान से, क्या है, ब्लीडिंग क्या होगी, अब कंट्रोल हुई। अब ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन था, अब ये क्या होगा, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब देखो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देता है। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, मार्कर में इंक खत्म हो गई है। इनएक्टिवेटेड, और क्या है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो इसलिए क्या है, अब बाहर निकलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट स्टिमुलेट होंगी। यहां पर एक चीज याद रखना, सबसे पहले यहां पर एटीपी होती है। क्या मिलेगा आप लोगों को प्लेटलेट में, एटीपी मिलेगा। ये एटीपी क्या करता है, ये क्या करता है, एक्यूमुलेट या फिर एग्रीगेट द प्लेटलेट, एग्रीगेट द प्लेटलेट। अब ध्यान से सुनते चले जाना डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्राइमरी हीमोस्टैसिस कौन सा है, उसमें क्या फंक्शन आएगा। फिर पूछा जाता है कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कौन सा क्या करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो एटीपी है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट एक्यूमुलेट करेगी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट या एग्रीगेट द प्लेटलेट। नेक्स्ट वन जो आता है एटीपी के बाद वो आएगा सीरोटोनिन। क्या आता है प्लेटलेट में, सीरोटोनिन। ये क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करवाता है ये, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, वेजो
कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि और कौन सा इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होगा जो हेल्प करेगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था थ्रोम्बोक्सिनेज A2। थ्रोम्बोक्सिनेज A2 ये क्या करेगा, स्टिकी मटेरियल क्या करता है, ये स्टिकी मटेरियल को क्या करेगा, ज़्यादा बाहर निकालने का काम करेगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट क्या हो जाएंगी, प्लेटलेट एडहेशन। प्लेटलेट एडहेशन मतलब क्या होगा, एडहेशन का मतलब क्या है, चिपकना। प्लेटलेट क्या करेगी, अब एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक तरफ से एक्यूमुलेट होगी प्लेटलेट, ऊपर से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, और तीसरा क्या हुआ कि वहां पर प्लेटलेट का एडेशन हो गया। जब ये कंडीशन वहां पर आएगी तो इस कंडीशन में होगा क्या, वहां पर वाइट ब्लड क्लॉट, वाइट ब्लड क्लॉट। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का अगर स्किन के ऊपर, जैसे मैं ये दीवार है अगर इस पे ऐसे मेरा रब होता है हाथ, अगर मैं अपना हाथ ऐसे रब करूंगा तो मेरा स्किन एब्रेशन हो जाएगा। स्किन क्या होगा, एब्रेशन होगा, जो सुपरफिशियल स्किन टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे। क्या होंगे, वो डैमेज होंगे। जैसे ही ये स्किन टिश्यूज डैमेज होंगे तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक येलोइश वाइट से कलर का, स्लाइटली वाइट कलर का क्या आता है, एक ऊपर प्लाज्मिक फ्लूइड सा आ जाता है, ऊपर क्या आता है, वो फ्लूइड सा आ जाता है। वही क्या होता है, ये जो हमारा प्लेटलेट जो एडेशन होता है वहां पर क्या होता है, वो प्लेटलेट एडेशन आप लोगों को दिखाई देता है, जो वाइट वाइट से कलर का आता है। ठीक है, अगर कई बार वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, एनारोबिक रिएक्शन वहां पर हो जाए तो उसको क्या करना पड़ सकता है, रिमूव भी कर सकते हैं। वो कई बार क्या होता है, पस की फॉर्मेशन ले लेता है वो, तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं है, पस प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता, याद रखना हमेशा। कहीं आप लोग बोलो कि सर हमने, हमारे तो यहाँ पस हो गई, आपने बोला था कि ये तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल क्या होती है, जो बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, वाइटिश जो लेयर होती है, उसके ऊपर पहले क्या हुआ, एग्रीगेशन एग्रीगेट द प्लेटलेट, पहले प्लेटलेट का क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ। तो हम लोग एक और चीज यहाँ से निकल के आ सकती है, या बोल सकते हैं एक और चीज, कि इसको बोला जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ प्लेटलेट, फर्स्ट लेयर ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, और ये क्या होती है, प्लेटलेट एडेशन। अब क्या होगा, ये एक लेयर प्लेटलेट की बनी हुई थी, अब ये उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अनदर लेयर ऑफ प्लेटलेट, अनदर लेयर ऑफ प्लेटलेट, अनदर लेयर ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, अनदर लेयर ऑफ प्लेटलेट। और कई बार क्या करते हो आप लोग, उसको फ्लूइड को रिमूव कर लेते हो। क्या करते हो, उस फ्लूइड को रिमूव करते हो। अब उस फ्लूइड के नीचे क्या थे, नोकिसेप्टर थे। क्या थे, उस फ्लूइड के नीचे नोकिसेप्टर होते, तो आपको पेन फील होता है उस टाइम पे। क्या फील होता है, पेन फील होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का, एक हो गया वेजोस्पाज्म, दूसरा होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन, तीसरे की अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट ब्लीडिंग क्लॉट, जहां पर किसका काम आता है, फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग कैरी करते हैं, फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब इसको देखते हैं। देखो कि क्लॉटिंग फैक्टर का कैसे फंक्शन होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप की हम लोग बात करते हैं। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप की अगर हम लोग बात करें, ये क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर which function together to make permanent cessation of bleeding, to make permanent cessation of bleeding,
टू मेक परमानेंट सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या है कि जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनका क्या है, वो क्या करते हैं, एक साथ मिलके अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। किसके लिए, टू परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर वो क्या बनाते हैं, रेड ब्लड क्लॉट। रेड ब्लड क्लॉट वो क्या करेंगे, यहाँ पर बनाने का काम करेंगे। रेड ब्लड क्लॉट बनाने का काम करेंगे इस कंडीशन में। और दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो, यहाँ पर क्लॉटिंग कैस्केड आता है। क्या आता है, क्लॉटिंग कैस्केड। कि कुछ एक हमारे जो हैं क्लॉटिंग कैस्केड क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे कुछ एक वाइटामिन, जैसे फॉर एग्जांपल वाइटामिन के। वाइटामिन के जो होता है डियर स्टूडेंट, वो दो तरह का होता है, वाइटामिन K1 और वाइटामिन K2। जो वाइटामिन K1 है इसका नाम होता है फाइलोक्विनिलोन, ठीक है, फाइलोक्विनिलोन, ठीक है, ये इसका नाम होता है। ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम क्या करते हैं, ये एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर। एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर, वो क्या होगा, क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड। अब क्या मतलब इसका, क्लॉटिंग कैस्केड का मतलब कि क्या है, सब चीजें मिलकर के क्या करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आ सकती है आप लोगों की। मैंने बोला कि इट इज द ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर विच फंक्शन टुगेदर। क्या बोला मैंने, विच फंक्शन टुगेदर टू परमानेंटली सीज द ब्लड। इसको और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज द एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, एक्टिविटी ऑफ ऑल क्लॉटिंग फैक्टर। ऑल कितने, ऑफ ऑल 13 क्लॉटिंग फैक्टर which work together in an effort of stoppage of bleeding। विद रेड क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको आप लोग हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हो खुरन। क्या बोलते हो, खुरन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई। प्रोसेस और थर्ड स्टेप में जो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग होती है, कि कैसे क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। और आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, क्लॉटिंग कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड, ठीक है। अब इसमें एक प्रोटीन और आता है, प्रोटीन 14 आप बोल सकते हो, या फिर प्रोटीन 13A आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। सॉरी, गलत हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर 14 क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 14 या फिर क्लॉटिंग फैक्टर 13A। एक न्यू क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्या कौन सा होता है, प्रोटीन C। इसको क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या होता है, प्रोटीन